Namaskar. Welcome to this session organized by Bharti Infratel in collaboration with Spandan Yog. And it is my privilege to have a session with the people from the land of Lord Jagannath. Although the whole universe belongs to Lord Jagannath, तो जय जगन्नाथ, हरिओम। तो बैठ जाएंगे किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में। ये जैसे सुखासन है, इसमें आराम से बैठते हैं, कैसे भी बैठते हैं। पैर को रख लिए, अगर पद्मासन या अर्ध पद्मासन नहीं लगने पा रहा है तो सुखासन में बैठ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। एक पैर को, दाहिने पैर को बाईं जंघा पर, ब्रिंग योर राइट लेग ऑनटू योर लेफ्ट थाइज, और वाइस वर्सा, लेफ्ट ऑन योर राइट थाइज, like that, Ardha Padmasana or Padmasana, cross leg position, or there is one simple Swastikasana. So here you have got calf muscle and thighs muscle in between you. Try to lock your toes and another toes, other legs toe between the calf and the thighs of another leg. This is also meditative posture, Swastikasana. Sit in this asana. Your spine, your shoulder, neck, head is straight. Posture will be like this. It should not be arched. ऐसे नहीं बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे. This is very bad posture. It should, the hip should rotate. The spine should, lower lumbar spine should, you try to thrust it inside, make it concave, a little concave, chest up in a straight line. It is S-shaped. This is S-shaped. Lumbar will be like this, then like this. So lumbar area should be concave from here. It is very important. While standing, while sitting, while doing work in the office, it should be like that. And whenever you are to bend forward, don't bend like this. ये कुबड़ नहीं बनाने का है. Always bend like this from hip girdle area. Don't try to make the, ये कुबड़ नहीं बनाने का, ये आर्क नहीं बनाने का है, आर्च नहीं बनाने का है झुकने के लिए. It should be like this. You should bend from the hip girdle area. So that is the sitting, correct sitting posture that everybody must follow. Now, hello, Guru, pranam. Pranam, sir. Yeah, pranam. Now, bring both of your hands at the back of your, at the back. Try because to we have grip your started. One of the wrist from behind and bend forward to pay respect to your Guru, your deities, जिनका मन में श्रद्धा है, सम्मान है, वो कोई भी हो सकते हैं. इस देवी देवता हो सकते हैं, आपके पिता माता, एनीबडी whom you have got respect. उनसे परमिशन लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, so that the session becomes fruitful. Try to bring your forehead onto the ground. Slowly lift your head, very slowly. We'll do the mantra, Santi mantra, for the universe, for the whole world, for everybody. Astoma from Rig Veda. Om Asitoma Samgamaya Samsoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. अब हम लोग खड़े हो जाएंगे और
ज्वाइंट मूवमेंट्स हम लोग करेंगे हेड टू टो, सर से पैर तक का ज्वाइंट मूवमेंट करेंगे। Hopefully my video is okay. Fine. ताड़ासन से शुरुआत करेंगे हम लोग। पैरों को की दूरी आपस में थोड़ी सी 3 से 4 उंगल, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। पुट दैट ऑन योर क्राउन ऑफ हेड। उसे पलटते हुए ऊपर की तरफ स्पाइन को खींचेंगे। इंटरकोस्टल डिस्क है जो ग्रेविटेशन की वजह से कंप्रेशन में रहता है। जो आपके मेरुदंड है उसमें डिस्क होते हैं, वो कंप्रेशन में रहता है बराबर, उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। ऊपर की तरफ खींचेंगे, पंजे पर उठेंगे श्वास लेते हुए धीरे से, आंखें सामने इनफाइनाइट पर, इंफिनिटी पर, बाजू कानों से सटा हुआ। धीरे से नीचे जाएंगे, टोस को रिलैक्स करते हुए पंजों पर पैरों के। You will stand on the sole of your foot. Now again, take deep inhalation and come up on your toes and raise your both the arms. Both the arms should be touching your ears. Gaze just in front of you on infinity, or if wall is there, horizontal to the ground. Exhale, relax. Again inhale, up. These are very simple yet very, very powerful. Different blockages are there in the body, in your joints. It has to be removed through yogasan, through kriya. Sat kriyas are there: dhoti, basti, neti, त्राटका, कपालभाति, नौली। तो उसके द्वारा शरीर में टॉक्सिन्स को का रिमूवल करते हैं, और योगासन और प्राणायाम से शरीर के और प्राणों का जो ब्लॉकेज है उसको दूर करते हैं। ओके, नाउ रिलैक्स। ये 10 बार आपको डेली करने हैं, 10 टाइम्स डेली। नाउ सोल्जर्स को पुल करेंगे। इंटरलॉक योर रिस्ट, कलाइयों को पकड़ लेंगे हाथों से, क्योनी को आकाश की तरफ उठाएंगे, बाहों को खींचेंगे। Feel the stretch at the side of your waist. Other side. Inhale and pull. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax. ये डेली विदाउट फेल आपको करने हैं, जिससे ज्वाइंट से सारे नर्व्स आपके ज्वाइंट से होकर के गुजरते हैं, सारे ज्वाइंट से। अगर उसमें ब्लॉकेज हुआ तो आपके प्राण का फ्लो या न्यूरोट्रांसमीटर्स का फ्लो वो प्रॉपरली होने नहीं पाता, ब्लड का फ्लो भी नहीं होता, तो सारे नरिशमेंट हैं बॉडी के दूसरे पार्ट में जाना या टॉक्सिन्स का रिमूवल वो इफिशिएंटली नहीं होने पाता। तो वो ख्याल रखेंगे कि सारे ज्वाइंट्स सफल हो, और मैक्सिमम जो उसका मूवमेंट है, टोटल मूवमेंट्स होता रहे। डिसयूज ऑफ लिम्फ की वजह से जैम हो जाता है, कंधा किसी किसी का बाजू उठता नहीं, जाम हो जाता है, क्योंकि हम उठाते नहीं ना। जब बराबर उठाएंगे तो जाम होगा नहीं। इंजरी हो गया, कुछ हो गया, दैट इज अनदर थिंग। नाउ नेक मूवमेंट्स। नेक मूवमेंट्स में क्या करेंगे हम लोग? इलोंगेट करेंगे। वी हैव टू इलोंगेट योर हेड फॉरवर्ड। सोल्जर, एवरीथिंग विल रिमेन as it is normal. Inhale and extend. Exhale, central point. Inhale, exhale, inhale, exhale,
इनहेल, एक्सेल, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इस तरह से 10 बार करेंगे आप, 10 टाइम्स। उसके बाद सर को पीछे की तरफ ले जाएंगे श्वास लेते हुए, डीप इनहेलेशन, श्वास लेंगे गहरी पीछे की तरफ, जितना ले जा सकते हैं कंफर्टेबली। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, ठुड्डी को ट्राई टू ब्रिंग योर चिन टुवर्ड्स योर थ्रोट पिट, एट योर थ्रोट पिट। ये गले के गड्ढे पर ये ठुड्डी को लाने का है। श्वास छोड़ते हुए बाय एक्सेलिंग। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये 10 बार आपको ये मूवमेंट करने का है। ये गला सफल होगा, सारे नर्व्स से गले से होकर के ब्रेन को जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जाता है ऊपर, सिग्नल्स, और मोटर ट्रांसमीटर्स, मोटर न्यूरोकेमिकल्स ऑर्गन्स को जाता है। तो ये बहुत ध्यान से करने का है कि गला सफल हो, बिल्कुल सही। नाउ कानों को, सर को बाईं तरफ और दाहिनी तरफ बेंड करेंगे, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए ट्राई टू ब्रिंग योर ईयर टू योर सोल्जर, लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट, राइट ईयर टू राइट, एंड व्हाइल डूइंग दैट एक्सेल, inhale, central position, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन आपके ब्रीदिंग के ऊपर, आपके मूवमेंट्स के ऊपर। हम एक्सरसाइज या एक्रोबेटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग योग साधना कर रहे हैं। तो सारा ध्यान आपका ब्रीदिंग के ऊपर, मूवमेंट के ऊपर, राइट। ये 10 बार करेंगे, 1, 2, 3, 4, 10 टाइम्स। नाउ ट्विस्टिंग ऑफ योर हेड टुवर्ड्स बैक फ्रॉम राइट, लेफ्ट साइड फ्रॉम राइट साइड। while twisting towards left back, exhale, while returning back, inhale। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए गले को, सर को ट्विस्ट करने का। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए, इनहेल, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। वेरी वेरी सिंपल yet वेरी वेरी पावरफुल। नाउ रोटेशन, सर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, बाईं तरफ से श्वास लेते हुए लौटेंगे, श्वास छोड़ते हुए, हाँ, पीछे ले जाएंगे, श्वास लेते हुए छोड़ेंगे, छोड़ते हुए सामने आएंगे, ये ध्यान रखेंगे। इनहेल, श्वास लेते हुए, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। लगेगा क्या कर रहे हैं, इतने सिंपल से हैं, इससे क्या हो जाएगा हमारा, कोई डंबल शंबल मार लें, कुछ डिप्स कर लें, वो भी करेंगे आप, लेकिन ये करना ही करना है। इसके बाद बहुत कुछ है जो आप करेंगे, उससे ज्यादा फायदेमंद है, उससे ज्यादा बॉडी को इंटरनल एंड एक्सटर्नल फायदा होगा। रिवर्स, उल्टे तरफ से, पूरा ध्यान देते हुए, इंटरनलाइज करते हुए, अंदर झांकते हुए, बॉडी के ऑर्गन्स के साथ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर ऑर्गन्स, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेथ, योर मूवमेंट्स,
which area is getting worked out, you are being getting aware of that. Okay, ये आपका मूवमेंट हो गया, नेक मूवमेंट्स. नाउ सोल्जर रोटेशन. बाजू को, फिंगर्स को कंधे के ऊपर ले आएंगे, सामने की तरफ से चौनी को मिलाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ से नीचे लाएंगे श्वास छोड़ते हुए. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए. ऐसा 10 बार करेंगे. फिर रिवर्स, उल्टी तरफ से, पीछे की तरफ से ऊपर श्वास लेते हुए, सामने की तरफ से नीचे श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. हाँ, 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से. ये कर लिया आपने. अभी हम लोग क्या करेंगे, कलाइयों के लिए करेंगे. बिल्कुल सिंपल. सामने कंप्यूटर पर काम करते हुए, लिखते हुए, कलाइयों में दर्द हो गया, कुछ ऑफिस में भी है. सिंपल. हॉरिजॉन्टल, पुट योर आर्म्स हॉरिजॉन्टल टू द फ्लोर एंड मूव योर पाम्स लाइक दिस, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही पावरफुल. डेली अगर किया जाए तो रिस्ट वगैरह में तकलीफ नहीं होगी, संभावना बहुत ज्यादा है, कोई तकलीफ नहीं. ये 10 टाइम्स करेंगे. फिर क्या करेंगे, फिस्ट बनाएंगे. ये मुष्टिका, घुसा जिसको बोलते हैं वो बनाए. तो लेकिन इसमें बनाने में क्या है, थम्स को अंदर कर लेंगे, पाम्स पर रखेंगे, फिर फिंगर्स को मोड़ लेंगे. ये फिस्ट बनाने में क्या है, योर थंब विल बी इनसाइड सराउंडेड बाय फिंगर्स. अब इसको रोटेट करेंगे. ठीक है, इसको रोटेट करेंगे आराम से 10 टाइम्स वन वे, 10 टाइम्स इन अपोजिट डायरेक्शंस. ठीक है, ये आराम से कर लेंगे. देन horizontal, your arms will be horizontal, palms facing the sky. Now breathe out and try to bring at your shoulder, fingers at the shoulder. Breathe in, breathe out. Very simple, very simple. 10 times you have to do with awareness on your breathing. Synchronize the movement with your breathing. Breathe out, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए. 10 टाइम्स करेंगे. देन साइडवेज, हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड. सांस छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए. एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल. नाउ रिलैक्स. किसी पोस्चर में जाना, रुकना और उससे वापस आना, तीनों इंपॉर्टेंट है. while going to a posture, retaining at that particular posture and returning back from that posture, all the 3 movements are very very important. अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कंधे का कर लिया. अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं कमर के हिस्से पर, वेस्ट एरिया, और इसको हम लोग मूवमेंट करते हैं. इसके 2 तरह से मूवमेंट करेंगे. अभी ट्विस्टिंग करेंगे. इसके ट्विस्टिंग, कटी चालन और कटी चक्रासन. बाएं हाथ की हथेली को दाहिने कंधे पर, दाहिने हाथ को रैप अराउंड और वेस्ट डाउन. देयर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट. कमर के नीचे का रेसिस्ट करेगा. इधर हम ट्विस्ट करेंगे तो कमर से नीचे का हिस्सा उल्टे तरफ घुमाने का प्रयास करेंगे, जिससे यहाँ पर ट्विस्टिंग आपको पूरी मिले. हाँ, यहाँ पर सफिशिएंट ट्विस्टिंग मिलनी चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, चेंज. चेंज योर पोजिशन ऑफ हैंड्स, ट्विस्ट. चेंज पोजिशन ऑफ योर हैंड, ट्विस्ट. ये ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं करेंगे. वेरी रॉन्ग मूवमेंट, वेरी रॉन्ग मूवमेंट. हाँ, ये कमर के नीचे का रेसिस्ट करेंगे.
रेसिस्टेंस देंगे उसको, गिव रेजिस्टेंस टू योर, कमर से नीचे का हिस्सा घूमने नहीं देने का चाहेगा, रेसिस्ट करेगा, इट शुड रेसिस्ट, एंड अपर बॉडी शुड ट्राई टू ट्विस्ट as much as comfortable. Feel the stretches at your back. स्ट्रेच को महसूस करें. ब्रीद आउट, ब्रीद इन, चेंज, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए. और एक बार आदत पड़ जाएगी, देन अ लिटिल फास्ट. ये 30 to 40 राउंड्स करेंगे आप इसको. सिंपल है. दूसरा इसका तरीका है करने का, ये सेम. ये देखिए कैसे मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है, इधर जा रहा है, ये मुड़ रहा है, मुड़ रहा है. बाजू जैसे ही सामने आ रहा है, एक स्ट्रेच हो रहा है, दूसरा बेंड फोल्ड हो रहा है. ये स्ट्रेच हो रहा है, ये फोल्ड हो रहा है. ये 30 से 40 बार इसको कर लेंगे. तो ये आपका वेस्ट एरिया का हो गया. वेस्ट के लिए एक और है जो काफी पावरफुल है. ये सब खड़े होकर के टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो फटाफट सामने है, ये कर लें, स्ट्रेच कर लें. उसके बाद हिप गायरेशन. इसमें स्टमक कोर मसल्स का इस्तेमाल करते हैं. और ये यू फील नॉट लाइक दिस, ये बड़ा सा सर्किल डाल रहे हैं, ऐसे लग रहा है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन स्टमक के मसल्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा. ठीक है, तो कोर मसल्स का इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज योर कोर मसल्स. और ये मूवमेंट करेंगे. लगेगा ट्रांसवर्स मसल्स है, या आपका रेक्टस एब्डोमिनस है जो बीच का रहता है, वो है, अपर है, लोअर है, ये सारा वर्कआउट हो रहा है आपको. 20 टाइम्स वन वे. पीछे भी वैसे ही ले जाएंगे, सामने की तरफ, साइड में, देन रिवर्स. मैजिक तभी है जब आप रेगुलर करेंगे उसको. बहुत कुछ करने के लिए आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा. वजन आपका ज्यादा है, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया है, अगर जोड़ों में कहीं अकड़न है, तो आपको अभी पता चलेगा करते करते धीरे धीरे कहाँ कहाँ आपको जकड़न. तो उसको ध्यान देने का है. अभी यहाँ का हम लोगों ने कर लिया. अब नीचे की तरफ आएंगे, नीज के ऊपर. नीज का हम लोग दो तरह से करते हैं. एक स्क्वाटिंग करते हैं. स्क्वाटिंग कैसे करते हैं? 4 अंगुल का या कंधे के बराबर गैप डाल देंगे, बाजू को हॉरिजॉन्टल टू द फ्लोर, बैठेंगे. जिनको दिक्कत हो रही है वो थोड़ा सा डाउन होंगे, अप होंगे, डाउन होंगे इनिशियल फेज में, अप होंगे. टारगेट आपका दो है, एक 90 डिग्री जैसे कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन कुर्सी है नहीं, अब बैठेंगे, ये हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड, अप हो जाएंगे, फिर डाउन होंगे, ये हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड. ये पैर को मजबूत बनाएगा. ठीक है, हाथ सामने ही रहेगा. और दूसरा पोजीशन क्या है? पुल डाउन, पुल अप, उठक बैठक, पूरे डाउन हो जाएंगे, पूरा दोनों पैर पर बराबर जोर देते हुए सामने आ जाएंगे. तो ये कर लेंगे आपका घुटना संचालन, घुटना चालन. और दूसरा है, इसको नीज को रोटेट कराते हैं. रोटेट कराएंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे. देखिए स्पाइन को हमने ऐसे नहीं किया हुआ है, स्पाइन, और इसको रोटेट करेंगे एक बार इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज. ये 10 टाइम्स करेंगे. ठीक है, और 10 टाइम्स क्लॉकवाइज. ये आराम से इसको घुमाएंगे. अब ये हो गया आपका, ऊपर से आपने गले का कर लिया, कंधे का कर लिया, कमर का कर लिया, घुटने का कर लिया. अब बैठ जाएंगे नीचे.
और ये उंगलियों का, ये दंडासन में बैठना बोलते हैं। पीछे अगर बैठने में दिक्कत हो रही है कि हम सीधा नहीं होने पा रहे हैं, तो टेक द हेल्प ऑफ योर आर्म्स, इससे मदद लेकर के अपराइट करने का प्रयास, और उंगलियों को, पैर की उंगलियों को ट्राई टू फोल्ड इट टुवर्ड्स यू, अवे फ्रॉम यू। आगे पीछे उंगलियों को, एंकल का मूवमेंट नहीं होगा, है ना। यू विल मूव ओनली योर फिंगर्स, राइट, फिंगर मूवमेंट्स हियर, फिंगर मूवमेंट्स, फिंगर मूवमेंट्स, ठीक है, पैरों की उंगलियों का 10 टाइम्स इसको कर लेंगे। फिर एंकल मूवमेंट्स, आगे पीछे, ट्राई टू ब्रिंग योर toes towards you, away, stretch your ankle, try to compress। जितने भी नर्व्स हैं वो खींचेंगे, देख रहे हैं ये ऐसे खींच रहे हैं, सारे नर्व्स यहाँ खींचेंगे, कंप्रेस कर रहे हैं। हाँ, तो ये मूवमेंट करेंगे जिससे एंकल का सफल हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी वहां भी आ जाए। देन रोटेशन, ये 1-2 दिन करने से नहीं होगा, डेली यू आर टू गो, लाइक ब्रशिंग योर टीथ। योगा हैज टू बी ब्रॉट एज ए लाइफ स्टाइल बाय यू, और वो आप कर लेते हैं तो डिजीज वगैरह की तिलांजलि हो जाएगी, वो जल्दी आपके पास फटकेगा नहीं, उसको स्कोप नहीं मिलेगा कुछ। देन रिवर्स, अपोजिट डायरेक्शन, opposite direction 10 times each side। then those who have got knee issues, उनके लिए क्या करेंगे, स्क्वीजिंग ऑफ नीज। ये सारे हैं डेली करने हैं, डेली करने हैं विदाउट फेल। आपके ज्वाइंट्स के ब्लॉकेजेस वगैरह समाप्त हो जाएंगे तो आप हायर साधना के लिए, हायर योगासना के लिए, प्राणायाम के लिए, सबके लिए बॉडी आपका प्रिपेयर होगा। तो अभी क्या करते हैं, काफ मसल को और थाइज को ट्राई टू कंस्ट्रिक्ट, टाइट करेंगे इसको और इसको, तो ये भी स्क्वीज होगा। हाँ, नी कैप्स जो है, इसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसका मूवमेंट होता है अंदर की तरफ। while exhaling squeeze it, inhalation relax, squeeze by tightening your calf muscle and thighs, relax, inhale, exhale, squeeze, श्वास लेते हुए रिलैक्स कीजिए, छोड़ते हुए स्क्वीज कीजिए, चाहे नीचे तकिया या पिल्लो और कुशन, यू कैन पुट दैट, ऐसे भी आप कर सकते हैं। सारा ध्यान आपके मूवमेंट में, व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड योर नीज, क्या हो रहा है, बी केयरफुल, बी अवेयर। 10 टाइम्स इसको स्क्वीज एंड रिलैक्स कर लेंगे, घुटने के लिए काफी बढ़िया है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दाहिने जंघा के ऊपर, थाइस के ऊपर, यू ट्राई टू ब्रिंग योर फुट एंकल्स अ लिटिल आउटसाइड ऑफ योर राइट थाइज, ये बाहर की तरफ हल्का होगा जिससे इसको रोटेशन करने पे। नाउ रोटेट इट कंफर्टेबली, रोटेट इट स्लोली एंड स्मूथली। कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर कहीं है तो खींच नहीं दीजिएगा, स्पिन हो जाएगा, तो धीरे से रुकिएगा, महसूस कीजिएगा उसको, और धीरे धीरे कीजिएगा बिल्कुल, अगर अकड़न है कहीं तो। अदरवाइज यू गो ऑन डूइंग लाइक दिस। देन अपोजिट डायरेक्शन, it will make it very very smooth with regular practice. All the joints has to be worked upon. Now change other leg, उनके पैरों को भी वैसे ही करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, बिल्कुल आराम से। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, आप स्लो कीजिएगा, आदत पड़ जाएगी तो आराम से वो ऐसे ही लगेगा कि ठीक है आराम से कर लिया, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बताने में ज्यादा समय लगता है, 10 मिनट्स के अंदर आपके सारे ज्वाइंट्स के कंप्लीट हो जाए, आपके पास समय रहेगा और भी योग साधना करने का। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, फिर दाहिने पैर को बाएं के ऊपर लाएंगे और इसको, इस ज्वाइंट को, आपका जो
हिप के साथ जो ज्वाइंट है इसको, जो थाइस के साथ थाइस जो ज्वाइंट है उसको ये मूवमेंट कराएंगे, गोल गोल जितना बड़ा सर्किल बना सकते। देन रिवर्स, उल्टे डायरेक्शन से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। अदर साइड, दूसरे पैर का वैसे ही गोल गोल, गोल गोल। डेली है ये पता भी नहीं चलेगा, आप तुरंत तुरंत इसको कर लेंगे। ज्वाइंट्स आपके बिल्कुल सपल रहेंगे, ब्लॉकेजेस ज्वाइंट्स में नहीं रहेंगे, कोई तकलीफ ज्वाइंट्स की नहीं होगी आने वाले समय में। रिवर्स, ठीक है, ये कर लेंगे। एक और बताते हैं, दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके थाइस के नीचे, इसको गोल गोल घुमाएंगे इन ए सर्कुलर मूवमेंट। जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इसको रेगुलरली करेंगे और धीरे धीरे आगे के भी जो है वो इंक्लूड करते रहेंगे। पहले ये स्टार्ट करेंगे इससे, रिवर्स, उल्टे तरफ से, सिंपल। ओके, अब दूसरे पैर का भी सेम, बाएं पैर को मोड़ लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, थाइस के नीचे, जंघा के नीचे लगा लेंगे इसको और गोल गोल इन ए सर्कुलर मूवमेंट। Try to make as bigger the circle as possible. Then reverse, in a reverse order, clockwise and anti-clockwise direction. ये भी हो गया आपका। अब बॉडी आपका वार्म हो रहा होगा ऑलरेडी। हाँ, अभी अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई। राइट फीट को मोड़ करके लेफ्ट थाइस के ऊपर रखेंगे, हाफ बटरफ्लाई। जिसका ऊपर रहता है इसको नीचे की तरफ लाने का प्रयास, योर टारगेट विल बी एट द फ्लोर। ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन, डोंट फोर्स इट, just practice. One day it will come to the ground. Movement should be like this, rhythmic movement, rhythmic movement. Other leg, same movement, left ankle on your right thigh, then this movement. If it is not coming towards the floor, like this, breathe out, try to push it towards the floor, leave, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Then with slow and regular practice, it will come to the floor. It may take some time, a few months, but you don't have to get disheartened. You are responsible for your physical condition, nobody else is. So still time is there, you should do it. Okay, now पूर्ण तितली आसन, वो पूरा बटरफ्लाई करने का है। इसमें पैर को सामने दंडासन में रखेंगे, मोड़ करके सोल ऑफ फुट, ट्राई टू ब्रिंग इट टुगेदर, सोल्स टुगेदर, ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ फ्रॉम द टोज, ट्राई टू ब्रिंग योर हील्स टुवर्ड्स योर पेरिनियम, एज नियर टू द पेरिनियम एज पॉसिबल। और सेम इसका मूवमेंट करने का, इसको आराम से 50 से 100 बार करने का इस मूवमेंट। एक चीज जो ये करते हुए बताना चाहूंगा मैं, एज फैक्टर है, एवरेज लाइफ स्पैन 80 ईयर्स, अब 40-45 के अराउंड जनरल आप लोग में से होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो भी एज हो आपका, 80 ईयर्स में उतना माइनस कर दीजिए, कितना साल बचा हुआ है? 20, 30, 40 ईयर्स बैलेंस। 40 ईयर्स आपको डिजीज फ्री रहने का है या दवा खा करके रहने का? हॉस्पिटल डॉक्टर के चक्कर लगाने हैं या नहीं लगाने, आपको डिसाइड करना है। और योग को अगर आपने लाइफ स्टाइल में डाल लिया, बिलीव मी, डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं, उसकी शक्ल देखने की जरूरत आपको जल्दी नहीं पड़ेगी। ये आजमाई हुई चीज है, मेरी चीज नहीं है, ये तो हजारों साल से चला आ रहा है। यू विल फॉलो द लाइफ स्टाइल, you will be disease free. Your immunity will get stronger and stronger over the period of practice.
अब ये कर लिया आपने। अभी क्या करेंगे आप, स्लोली बेंड करेंगे फॉरवर्ड की तरफ सामने और ट्राई टू ब्रिंग योर फोरहेड ऑन टू द ग्राउंड। कम होता है कम ही करेंगे, चाहे तो हाथ को पीछे सपोर्ट दे करके ये मूवमेंट करें, और ये हिप गर्डल है इसको रोटेट करने का, आपको मोड़ने का है सामने की तरफ, ये मूवमेंट करने का। लोअर स्पाइन कॉन्केव रखते हुए ये अनुभव करने का है कि आप कितना जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं। तो स्लोली प्रैक्टिस करेंगे, देन आपका टारगेट है फोरहेड को ग्राउंड पर लाने का, कुबड़ बिना बनाए हुए। सर को पहले उठाएंगे, स्लोली बॉडी को, ये कॉन्केव का कॉन्केव रहेगा। तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग में, कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं आपका पोस्चर ऐसा ही रहेगा, इसमें कभी आर्क नहीं बनेगा। बिल्कुल नॉर्मल जो पोस्चर रहता है इस शेप में ही आप सामने की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ओपी हिप गर्डल एरिया के पास। यहां से नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेंगे आप। उसके बाद हम लोग जो रेगुलर करने वाले में है बद्ध पद्मासना, ये हमें रेगुलर करने का, डेली करने का। तो जो डेली करने वाले हैं वही हम लोग टेकअप कर रहे हैं। बद्ध पद्मासन में मैं बता देता हूँ, ये आपको प्रयास कीजिएगा, शायद आपका हाथ जो, अगर अभ्यास आपने नहीं किया है, अगर रेगुलर आप नहीं हैं, यू विल नॉट बी एबल टू डू, बिना मैं देखे हुए बता रहा हूँ। क्योंकि दिक्कत होती है, आपके पूरे ये अकड़े होते हैं, ये अकड़े होते हैं, अगर फैट है, इट विल नॉट अलाउ यू टू परफॉर्म दिस। तो टारगेट आपको रखने का, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, फैट बर्न होगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट। इट इज नॉट डिफिकल्ट, ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। तो पैर सीधा रहेगा, दाहिने पैर को लाएंगे इधर थाइस के ऊपर, बाएं को, बायां पैर हमारा ऊपर है, लेफ्ट लेग इज एट द टॉप ऑफ राइट। तो लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ से मोड़ते हुए, ये बिग टो है, पैर का अंगूठा है बाएं पैर का, इसको ग्रैब करेंगे योर मिडिल, बाय योर मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर एंड विथ योर थंब, इससे उसको ग्रैब करेंगे। सिंपल ना, ट्राई टू डू इट। इफ यू आर एबल टू डू इट देन you are in practice. If you are not able to do it, then you have to practice. Okay, now adjust your body. अभी ये पोर्शन है, इट विल डिसाइड कि आपका वेस्ट में, कंधे में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ट्राई रेगुलर अभ्यास से यू विल बी वेरी इजीली, यू विल बी एबल टू डू इट। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, दैट इज द डिफरेंस। ओके, try to hold the big toe with your middle finger, index finger and thumb. Adjust your body. Don't try to leave it. Now try to bring forward, extend and bring your forehead onto the ground. If you are able to do it, well, otherwise practice, one day you will be able to do it. That is my guarantee to you. Do regular practice. Slowly lift your head. Don't leave the toes. Slowly you release. तो धीरे धीरे जो फैट वगैरह बर्न होगा और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, वो यही सारे मंत्र यही है, आपके ज्वाइंट्स के सारे करेंगे धीरे धीरे, ये आपका सफल हो जाएगा बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, कंधे में खिंचाव, पूरा जितना इसका मूवमेंट है, एरिया ऑफ मूवमेंट है, वो सारा वो होने पाएगा। अब एक और हम लोग करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपके कंधे का कंडीशन क्या है। फ्रोजन सोल्जर जिनका रहता है वो बांह नहीं उठता है, तो ये करेंगे तो पता चलेगा कि आपके कंधे का कंडीशन क्या है, और रेगुलर अभ्यास से अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए। चलिए, दंडासन में पैर, बाएं पैर को दाहिने पैर के नीचे होते हुए पंजे को
दाहिने बटक के पास, राइट बटक, दाहिने पैर के पंजे को लेफ्ट बटक के पास, घुटना एक दूसरे के ऊपर, योर नीज विल बी एट द टॉप ऑफ वन अनदर, राइट नी विल बी एट द टॉप ऑफ लेफ्ट। बैठेंगे बैलेंस करते हुए अपने स्ट्रेट, दाहिना पैर ऊपर है, दाहिना हाथ ऊपर से लाएंगे, ऊपर से पीछे की तरफ, बाएं हाथ को पीछे की तरफ से फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक कर लेंगे और फिस्ट बना लेंगे। योर एल्बो शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्काई, आकाश की तरफ केहनी होगी, दाहिनी केहनी। कंफर्टेबली, आसन सिद्धि बोलते हैं जब एक स्थिर सुखम आसनम, किसी भी आसन में जब कंफर्टेबल आप 3 घंटे तक रहते हैं तो आसन सिद्धि मानी जाती है कि उसमें आप कंफर्टेबल हैं। स्लोली रिलीज, तो वो अभ्यास करने से होगा, बैठते हैं तो कितने घंटे बैठ करके मेडिटेशन करते हैं वो आदत के ऊपर है। शायद इस लाइफ स्टाइल में हम लोग को उतने ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, जितनी भी ज़रूरत है वो अच्छे से हो जाए, जॉइंट्स वगैरह ठीक रहें, हम लोग डिजीज फ्री रहे, दैट इज द पर्पस। अभी क्या है, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर करके क्रॉस लेग बैठेंगे, बाएं हाथ को ऊपर से, क्योंकि बायां पैर हमारा ऊपर है, बाएं हाथ को ऊपर से पीछे की ओर, ये दाहिने हाथ को पीछे की तरफ से फिंगर्स को पकड़ लेंगे और फिस्ट बनाएंगे। स्लोली रिलीज करेंगे, बिल्कुल धीमे से रिलीज करेंगे। ब्रीथ आउट एंड ट्राई टू ब्रिंग योर palms at the floor। ये आपका गो मुख आसन, ये कंधे का आपका कभी भी कंधा जाम होता है, ये सब नहीं होने देगा। पूरा आपका मूवमेंट हो रहा है, कंधे को खींच रहा है। और भी जितने ज्वाइंट्स के हैं वो सब रेगुलरली करने हैं, तो वो प्रॉब्लम कभी नहीं, ज्वाइंट्स के प्रॉब्लम नहीं होंगे जल्दी। अब हम लोग क्या करेंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासन, और उसमें दिक्कत होगी तो हम लोग एक स्टार्ट करेंगे, जिनको कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो हम लोग एक सिंपल सा कर लेंगे। बाएं पैर को मोड़ करके उसके सोल ऑफ फुट को बाएं थाइस के बगल में रख लेंगे और बॉडी को एडजस्ट करके अपर आर्म है इसको रसिस्ट करेंगे इस ढंग से, थाइस के नीचे, नीज के थाइस के नीचे इसको डाल करके पीछे जितना ट्विस्ट कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। स्पाइन नेक स्ट्रेट, ब्रीदिंग नॉर्मल। ऐसा ही हम लोग दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। बाएं पैर के पंजे को दाहिने थाइस के तरफ, इस तरफ नहीं लाएंगे, इस तरफ ही रहेगा, और दाहिने अपर पाम को इससे रसिस्ट करेंगे, इससे रसिस्ट करेंगे, धकेलेंगे। ये कर लेंगे आप। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने बटक्स के पास, दाहिने पैर के पंजे को खड़ा रखेंगे अभी इसको, और सेम फोर आर्म को थाइस से इसे बिग टो को बाएं पैर के दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे।
ठीक है, स्लोली रिलीज, चेंज कर लेंगे। दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे से होते हुए पंजे को बाएं बटक्स के पास, दाहिने पंजे को थाइस के बाहर, ये सीधा रहेगा घुटना। अपर आर्म को, बिग टो को पकड़ लेंगे, ट्विस्ट कर जाएंगे। स्लोली रिलीज, ये कर लेंगे आप। अभी मैं फॉरवर्ड बेंडिंग का इसमें कवर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें अगर इसका जैम है तो उसमें थोड़ा बाद में करेंगे। वो वीडियो है, उसको आप देखिएगा, उसमें क्या करने का। अभी हम लोग ऐसा करेंगे जो कोई भी कर सकता है। तो पवन मुक्तासन सीरीज का हम लोग करेंगे, वो कर लेंगे, है ना। ये भी काफी पावरफुल है आपका। लेट जाएंगे शवासन में, इधर से लेट जाएंगे, आवाज आपको जाएगी। ओके, शवासन में लेट जाएंगे, पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी, कंफर्टेबली, हाथ शरीर के बगल में। अब बाएं घुटने को मोड़ते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करके पुश करेंगे, पूरा ब्रीद आउट करेंगे कंप्लीट। जितना चेस्ट के पास दबा सकते हैं दबाएंगे, ठुड्डी को उठा करके लगाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ते हुए घुटने के पास से फिर बाएं पैर को श्वास लेते हुए रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए सेम, रिलैक्स। फिर दूसरे पैर को सिंपल, इट वेरी वेरी पावरफुल। दूसरे पैर को ये कर लेंगे। अब हम लोग दोनों पैरों को उठा करके करेंगे। फोल्ड योर लेग्स, ट्राई टू ब्रिंग इट टुवर्ड्स योर चेस्ट, प्रेस इट, release all, exhale completely, try to bring your chin towards your knees, inhale, relax, again lift, exhale, exhale completely, again inhale, relax, exhale completely, inhale, exhale, ये 10, 20, 30 टाइम्स इसको करने का। उसके बाद हम लोग सर्कुलर मूवमेंट है, पंजे को जमीन की तरफ गोल गोल इसको घुमाएंगे, जितना घुमा सकते हैं गोल गोल इसको सर्किल में घुमाएंगे। वन वे 10 टाइम्स एज पर योर कैपेसिटी, देन रिवर्स दूसरे तरफ से। ओके, 10 टाइम्स, देन अदर लेग in a circular motion, then reverse. Try to make as big circle as you can. ठीक है, ये सारे बिल्कुल सिंपल है, एनीबडी कैन डू दिस। थक जाएंगे शवासन में, रिलैक्स कर जाएंगे, किसी लिम्स में कहीं
थकावट है, टायर्ड है, उसको रिलैक्स करेंगे कॉन्शियसली, ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर हम लोग क्या करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग लेट करके, ये पद संचालन, साइकिलिंग करेंगे। फैट वगैरह बर्न करना है तो ज्यादा करेंगे लेट करके। भागने दौड़ने से जिनके वजन ज्यादा है उनको घुटने पर, रिवर्स घुटने पर जोर होता है ज्यादा चलेंगे तो। वेट ज्यादा होने से घुटने के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लेकिन लेट करके ऐसे करने से घुटने के ऊपर बॉडी का वेट नहीं पड़ता है और आपका साइकिलिंग हो जाती है आपकी। ये साइकिलिंग कर लेंगे, टायर्ड हो जाएंगे, नीचे करके रिलैक्स कर जाएंगे। अभी आपने बहुत सारा पैर को ऊपर की तरफ उठाया, लाइक फॉरवर्ड बेंडिंग। एक छोटा सा बैकवर्ड बेंडिंग का सेतु बंधासन। पैर के पंजे को बटक्स के पास लेकर के आ जाएंगे मोड़ करके। इस अवस्था में एंकल्स को ट्राई करेंगे पकड़ने का, अगर पकड़ने पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो जमीन पर रखेंगे और बॉडी को आर्च करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। रिलैक्स, नीचे ले आएंगे। 3 बार इसको करेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर ले जाएंगे। चिन्ह है यहाँ लग जाएगा, लॉक लग जाएगा, फिर सांस लेना छोड़ना बंद हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे आ जाएंगे। जब चिन्ह लॉक लग जाएगा तो एक तरह से जलांध्र बंधा लग गया, थ्रोट लॉक लग गया, तो उसमें सांस लेना छोड़ना बंद हो जाता है। तो ये कर लेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे शवासन में बिल्कुल आराम से। अभी हम लोग पीठ के बल का कुछ कर लिए। एक दो है नौकासन भी कर लेंगे हम लोग, नवासन, नौकासन। उसमें क्या करेंगे, हाथ पीछे, पैरों को उठाएंगे। देखिए ज्यादा नहीं उठाया हुआ है मैंने, कम उठाया हुआ। फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, ट्राई टू टच इट द टोज। रिटर्न स्लोली, होल्ड, होल्ड, रिलैक्स। नवकासन, हाथ पीछे की तरफ, फिर लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे और ऊपर उठेंगे और ऊपर उठेंगे, टोस को लगाने का प्रयास, होल्ड करेंगे, रिटर्न होंगे, लेट जाएंगे। शवासन में शरीर में कहीं भी तनाव हो उस पर ध्यान देते हो, कुछ नहीं करना है, उस पर ध्यान देने का है, ब्रीदिंग पर, वो नॉर्मल रखना है, खुद ही वो तनाव समाप्त हो जाएगा। बस ध्यान देने का है कहाँ पर तनाव है, कहाँ थकावट, शरीर के किस अंग में खिंचाव है, तनाव है, बस उस पर ध्यान लेकर के जाएंगे और ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, स्टमक ब्रीदिंग। सांस लेते हैं पेट ऊपर की तरफ आता है, सांस छोड़ते हैं पेट अंदर की तरफ जाता है। ये स्टमक ब्रीदिंग का ध्यान देंगे, उस ऑर्गन के ऊपर ध्यान देंगे, वो खुद ही रिलैक्स हो जाएगा। अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे, पैर को उठा करके 90 डिग्रीज पर ले जा करके होल्ड कर देंगे। सर्वांगासन और हलासन में थोड़ा समय लगता है, अगर वजन ज्यादा है तो ज्यादा प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे होगा, वो भी होगा। तो ये अर्ध हलासन पर चले जाते हैं पैर को, जिससे वेनस ब्लड है वो लौटने पाए टुवर्ड्स योर हार्ट। हमेशा पैर नीचे रहता है अलोंग द ग्रेविटी, जाना तो आसान रहता है, लौटने में, खड़े रहने में या बैठने में वेनस ब्लड को कभी कभी दिक्कत होती है ब्लॉकेजेस की वजह से। ये रेगुलर अभ्यास करेंगे तो वेनस ब्लड का फ्लो हेल्प करेगा हार्ट को, तो हार्ट भी आपको हेल्प करेगा। फिर गिव एंड टेक है ना, आप हार्ट का ध्यान रखेंगे तो हार्ट भी आपका ध्यान रखेगा।
आराम से फिर इसको नीचे ले जाके रिलैक्स करना है। शवासन से जनरली उठने का जो तरीका होता है, वो सीधे उठना तो अच्छा होता है कि बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे करके आराम से उठ गए, खड़े हो गए, हाँ, फिर नीचे चले गए, बैठ गए। लेकिन जनरली बॉडी जब अट्यून नहीं हुआ है, सपलनेस नहीं आई है, तो धीमे से उठना चाहिए। लेग्स टुगेदर, हैंड्स टुगेदर, लेफ्ट हैंड बैक, बाएं हाथ को पीछे की तरफ करके बाएं की तरफ टर्न होंगे और धीरे से, सवेरे भी उठना है आपको तो बिल्कुल आराम से उठेंगे, बिल्कुल आराम से उठेंगे आप। उसके बाद कंपोज्ड होंगे, उठ जाएंगे। अभी हम लोगों ने पीठ वाला कर लिया है, अभी पेट वाले करेंगे हम लोग, पेट पर लेट करके करेंगे। वो भी है बैक का इश्यू जिनको है, लोअर बैक पेन है, उनको ये जरूर जरूर करना चाहिए, ठीक है। पेट के बल हम लोग लेट जाएंगे और अर्ध सल्वासन हम लोग करेंगे। हाथ सामने की तरफ, बायां हाथ दाहिना पैर ठुड्डी और चेस्ट ऊपर उठेगा, होल्ड करेंगे। अपोजिट हैंड एंड लेग, दाहिना हाथ बायां पैर ठुड्डी और चेस्ट, रिलैक्स। अदर साइड, रिलैक्स। अदर साइड, रिलैक्स। अदर साइड, रिलैक्स। ये करेंगे आप। इसके अलावा भी है, वो भी मैं बता देता हूं। एक दिन ऐसा कर लेंगे और दूसरे दिन क्या करेंगे, हाथ को साइड में रख लेंगे, पाम्स फेसिंग डाउन जमीन की तरफ, और एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे, ठुड्डी चेस्ट जमीन पर, ये होल्ड करेंगे, देन डाउन। दाहिना पैर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और घुटना मुड़ेगा नहीं, ये मुड़ेगा नहीं, ये सीधा रहेगा। डाउन, अप एंड डाउन। इसको करेंगे, ये आपके बैक इश्यू के लिए बहुत ही फायदेमंद। अब एक सर्पासन करेंगे और धनुरासन करेंगे, दो चीज को सीख लीजिए दोनों। भुजंगासन भी है, सर्पासन भी। भुजंगासन करेंगे वो ज्यादा सही, सर्पासन में स्ट्रेन ज्यादा लगेगा। तो भुजंगासन में सीधा लेटेंगे, ब्रिंग योर पाम्स बाय द साइड ऑफ योर चेस्ट, और आर्म्स से शरीर से सटा रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, ये शरीर से सटा हुआ रहेगा, और नेवल एरिया तक, नाभि तक ही शरीर को उठाने का है। पाम्स के ऊपर, नाभि तक ही, बहुत ज्यादा नहीं उठेगा। थक जाएंगे, रेस्ट लेंगे। मकरासन में पाम्स के ऊपर, ये एरिया है फोरआर्म परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, और हथेलियों पर गाल को और ठुड्डी को रखेंगे, पैर बाहर की तरफ निकला हुआ, पंजा बाहर की तरफ, आराम से ऐसे। ये भी बैक पेन में बहुत ही फायदेमंद। फिर धनुरासन, पैर को मोड़ लेंगे, एंकल्स को पकड़ लेंगे, बॉडी को आर्च करेंगे, खींचेंगे, नहीं होगा तो थोड़ा सा झूल भी लेंगे, झूल लेंगे। फिर रिलैक्स करेंगे, मकरासन। बैक में बहुत आराम देगा, बहुत आराम देगा। बैक का कोई इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता है, वो भी फिजियोथेरेपी के लिए ही बोलेगा। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, यही सब कराएगा। उससे बेहतर है ये आप करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपके कुछ जो आपको रेगुलर बेसिस पर करने हैं। और भी बहुत सारे, बहुत कुछ हैं जो धीरे धीरे कुछ को जोड़ेंगे, कुछ को जोड़ेंगे। सर्वांगासन है, सर्वांगासन भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। जो यंगर जनरेशन है वो देखें, एक बार मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा आसन है।
उसमें भी आपको किस तरह से उठेंगे, बॉडी का क्या एंगल रहेगा। सर्वांगासन कर लेते हैं जनरली, जो यंग है वो तो कर लेंगे। लेटेंगे, पाम्स फेसिंग डाउन, लेग्स टुगेदर, शरीर को पूरा कुल्हे के पास से लिफ्ट करेंगे, आकाश की तरफ ले जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो पाम्स का इस्तेमाल करेंगे, हथेलियों का ही इस्तेमाल करते हुए उठाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। ये फिर इसको सपोर्ट ले लेंगे। जो पद्मासन लगाते हैं वो पद्मासन भी यहाँ से लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। सिंपल, धीमे से इसको नीचे लाएंगे। अपर पोर्शन नहीं उठ रहा है, ये नहीं उठेगा। स्टमक मसल्स को इस्तेमाल करते हुए धीरे से इसको नीचे लेकर के जाएंगे आराम से। ये हो गया सर्वांगासन। और इसको करने के बाद चूंकि एक तरह से अपने स्पाइन के ऊपर पीछे से लोड पड़ा है, तो हम लोग मत्स्यासन कर लेते हैं। मत्स्यासन में अगर पद्मासन लगता है तो ठीक है, नहीं तो पाम्स को बटक्स के नीचे डालेंगे, फेसिंग डाउन, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स फ्लोर, और बॉडी को आर्च करेंगे, क्राउन ऑफ हेड को नीचे लाने का प्रयास। रिलैक्स करेंगे शवासन में। शवासन बहुत पावरफुल है, बैटरी चार्जिंग आसन। कभी भी टायर्ड हो गए, स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस लग रहे हैं, पहले तो होने नहीं देने का, हो गया तो इसमें रिलैक्स करने का है। लेग्स टुगेदर, हैंड्स टुगेदर, लेफ्ट हैंड बैक, धीरे से करवट लेकर के बैठ जाएंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब जल्दी से, समय तो हुआ है लेकिन 2-3 मिनट हम ले लेंगे जिससे कि आपका नाड़ी शोधना मैं बताने पाऊँ। प्राणायाम का नाड़ी शोधना और क्रिया में कपालभाति, ये दोनों मैं जल्दी से कर लूंगा। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर। धीरज जी, आर यू ओके? एवरीबॉडी इज ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I We are would okay. like to cover this Nadi Sodhana, Avilom Vilom, and Kapalbhati quickly. जी, जी sir. जी sir. Okay. तो नाड़ी शोधना ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। बताते हैं कि ये अगर मास्टरी कर लें आप, तो फिर नथिंग लाइक दैट, यू विल हैव कंप्लीट पर्सनालिटी। शिव शक्ति का जो पर्सनालिटी है वो आपकी हो जाएगी। आपका मेंटल पावर एंड फिजिकल पावर, प्राण शक्ति एंड मनोशक्ति, ये सारे आपके बैलेंस हो जाएंगे। शिव शक्ति, लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन दोनों बराबर काम करेगा एट द ऑप्टिमम लेवल। तो इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज ईदा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, गंगा इसको बताते हैं। ये सॉफ्ट होता है, फेमिनाइन होता है, राइट नॉस्ट्रिल, और ये राइट ब्रेन के हेमिस्फीयर से कनेक्टेड रहता है। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द ब्रेन। और राइट नॉस्ट्रिल है पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, यमुना, ये लेफ्ट ब्रेन के हेमिस्फीयर को के साथ कनेक्टिविटी रहती है। लेफ्ट क्रिएटिविटी, राइट लॉजिक एंड रीजनिंग, ठीक है, ये मैस्कुलिन हुआ, ये फेमिनाइन हो गया। तो इसको हम लोग जब बैलेंस करते हैं, और दिन में आप देखेंगे कि कभी भी महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि कभी एक का फ्लो प्रॉपर है, कभी एक का है ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, कभी ईडा काम करती है प्रॉपरली, कभी पिंगला काम करती है। तो हमारा इससे काम रहता है कि दोनों का फ्लो हम बैलेंस कर दें, इससे सुषुम्ना एक्टिवेटेड हो जाती है, और आपका ब्रेन है सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पारासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों आपका प्रॉपरली काम करने लगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम लोग करेंगे इसको। ध्यान चिन्ह मुद्रा में, नासिकाग्र मुद्रा, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को मोड़ लेंगे, रिंग फिंगर को लेफ्ट नॉस्ट्रिल को मैनिपुलेट करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को थंब के साथ करेंगे। हम लोग जितना समय बाएं नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे दाहिने को बंद करते हुए, उससे दुगना समय श्वास छोड़ने में लेंगे
लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से दुगना समय लेंगे श्वास को छोड़ने में। बाएं को बंद ही रखेंगे, दाहिने से जितना समय लेंगे फिर बंद कर देंगे, उससे दुगना समय बाएं से छोड़ने में लगाएंगे 1 साइकिल। ऐसा स्टार्टिंग में 5 से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 25, 30 तक जैसे समय है और रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। और हाथ से हम बताएंगे किस तरफ से श्वास आपने लिया और किस तरफ से छोड़ा। ये आपको करना नहीं है, हाथ आपके घुटने पर ही रहेंगे, मैं बता रहा हूं ऐसे करने का, ठीक है। इधर से आप श्वास ले रहे हैं, ओके। रेशियो जो 1:2 का है, ये पूरक रेचक, हाँ, इसमें कुंभक भी बाद में आता है, रिटेन भी करते हैं, वो कभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो रेशियो लेने से जितना समय लेते हैं, छोड़ने में दुगना समय लेना है, ये ध्यान देने का है। बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, 1 साइकिल। तो ये अभ्यास करें आप। अब हम लोग आते हैं कपालभाति, क्रिया भी बोलते हैं, प्राणायाम भी कभी कभी बोलते हैं। लंग्स का सिस्टम समझ ले। लंग्स जनरली सामान्य अवस्था में इनहेल करने में ताकत लगाता है, इट अप्लाइज फोर्स, और जब रिलैक्स करता है लंग्स के मसल्स तो ऑटोमेटिकली हवा बाहर चली जाती है, एक्सेल हो जाती है। हम लोग रिवर्स प्रोसेस को करते हैं कपालभाति में। हम लोग फोर्सफुली श्वास को छोड़ते हैं और इनहेलेशन विल बी स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोमेटिकली, लंग से उसको सक कर लेता है एयर को खुद ही, क्योंकि वैक्यूम हो गया, खींच लेगा हवा को। हम लोग पुश करके बाहर छोड़ेंगे, हवा वो ऑटोमेटिकली खींच लेगा। तो इससे क्या होता है कि आपके जितने भी प्राणायाम है उससे आपके कफ, पित्त और वात है, ये जो 3 आपके दोष हैं, इसको बैलेंस करता है। तो क्या हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो योगासन से ओवरऑल इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, डिजीज वगैरह से फाइट करने में बड़ी स्ट्रांगर होगा। और इसमें क्या है कि जब आप फोर्स लगा करके करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेवल है वो ज़्यादा ऑक्सीजन का फ्लो लंग्स के थ्रू होता है, तो उसमें आपका रेड ब्लड सेल्स जो है उसकी मात्रा, उसका अनुपात बढ़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो है अब हम लोग करेंगे। देखिए किस तरह से कपालभाति हम लोग कर रहे हैं, और स्लो करेंगे, आराम से करेंगे। मैं धीरे से करूंगा, मिडिल लेवल पर जाऊंगा और फास्ट होऊंगा। आपको शुरू में करना है, कैसे शुरू में बता देते हैं कैसे करेंगे। ऑब्जर्व स्टमक, इस पर फोकस रखिएगा, ये कैसे कर रहे हैं। मेडिटेटिव पोस्चर, स्पाइन, सोल्जर, नेक, हेड स्ट्रेट। पेट का मूवमेंट देखिएगा कैसे हो, नॉस्ट्रिल का। शुरू में ऐसे करेंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो कहीं मूवमेंट, एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होगा, ये कंधे वगैरह का मूवमेंट कुछ नहीं होगा। वाइब्रेशंस होगा क्योंकि सांस आप छोड़ रहे हैं तो यहाँ वाइब्रेशन होगा, लेकिन मूवमेंट अननेसेसरी कहीं नहीं होगा। स्टमक से यहाँ आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। मिडिल, फास्ट, ये फास्ट हो गया। तो ये कपालभाति है, काफी पावरफुल है, डेली करेंगे। कपाल फ्रंट, इसको क्लिनजिंग करता है इसका। इसको भी, ये सर दर्द वगैरह कभी हुआ, 10 मिनट आप कपालभाति कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए, बट इट हिट्स द बॉडी। तो और ये एक्सट्रोवर्टेड बनाता है, सांस तेजी से लेते हैं। जठराग्नि को
डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है ये। तो ये ध्यान रखने का है कि बहुत ज्यादा गर्मी है तो गर्मी में अगर ज्यादा कपालभाति करेंगे तो बॉडी विल इनसाइड ऑफ द बॉडी विल गेट हीटेड, तो उसके रिपरकशंस हो सकते हैं। तो इसलिए बड़े सावधानी के साथ सोच समझ करके करना है। जाड़े में ज्यादा करेंगे, बीपी जिनको ज्यादा है वो सोच समझ करके करेंगे। इन्वर्टेड पोर्शन भी हार्ट वाले और बीपी जिनका ज्यादा है वो समझदारी से करेंगे। लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि बिल्कुल न करेंगे। जैसे वॉकिंग करने में या हाथ को उठाने में कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो हाथ को मत उठाइए और धीरे धीरे टहलना आपको नहीं करने का, बेड पर ही पड़े रहिए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा। तो अभी क्या है कि कोई भी मूवमेंट, एक मूवमेंट जो मेरे लिए नॉर्मल हो सकता है वो आपके लिए स्टेनुअस हो सकता है, या आपके लिए जो नॉर्मल हुआ हो सकता है दूसरे के लिए स्टेनुअस हो। तो हार्ट के ऊपर लोड नहीं पड़ना चाहिए, बस इतना ध्यान रखने का, ये कॉमन सेंस। किसी भी पोस्चर में जाने पर हार्ट के ऊपर अगर आपको एक्सर्शन नहीं पड़ रहा है तो इट इज ओके फॉर यू। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आसन नहीं करने का है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन रेगुलर अभ्यास कीजिए, पहले ज्वाइंट्स के कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, तो कोई ऐसा नहीं रहेगा जो हार्ट का तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, उतना कीजिएगा तो क्या है, जम करके आराम से उसके बाद आसन करना है, एडवांस आसन भी करने का कोई इश्यू नहीं। तो धीरज जी, हमारे विचार से मैंने लिबर्टी ले लिया है, थोड़ा सा सैटरडे था, ये गुरुजी कवर आपका कराना बहुत बहुत जरूरी लग शुक्रिया। रहा था मुझे। सो थैंकफुल टू यू गुरुजी। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही यूजफुल रहे सारे आसन, और हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम आगे इनको प्रैक्टिस कर पाए। आपके समय के लिए और आपके एफर्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरिओम हरि। These are very simple yet very very powerful. Different blockages are there in the body, in your joints. It has to be removed through yogasana, through kriya. Such kriyas are there 10. Exhale, central point. Inhale. श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ ठुड्डी को ट्राई टू ब्रिंग योर चिन टुवर्ड्स योर थ्रोट पिट, एट योर थ्रोट पिट। ये गले के गड्ढे पर ये ठुड्डी को इनहेल, एक्सहेल।